So shall we start? Yes, sir. Okay. So can someone sum up the class yesterday of yesterday? Yesterday का class कोई sum up करेगा? Very quickly. Anyone? आप लोग नहीं करोगे तो मैं पूछूंगा आप लोगों से. Okay, Sovik, can you sum up the class of yesterday? Hello, Sovik. Sovik. Please sum up the class of yesterday. क्या हो रहा है? टाइप कर रहे हो? I can hear you typing. Shovik? Hello? Hello? We are not able to hear you. Okay, Ankita, can you sum up yesterday's class? Ankita? Sir, I can't. It's totally I can't. अच्छा ठीक है, तो कौन कर सकता है? जैस्मिन, शांतनु, शुभम? हेलो, अरे कुछ तो बोलो. Yes, तुम लोग sir. चुप क्यों? हाँ जैस्मिन, you do it. Sir, I can try anyhow. Sir, Okay. first we read about the civil disobedience movement. Previously the non-cooperation movement failed because it turned Not violence. corporation, it is cooperation. Yes, cooperation movement failed Cooperation. because it turned violence. So Mahatma Gandhi thought that we should teach the people before launching any movement. So after that, he launched the civil disobedience movement, in which they were asked to disobey all the laws which were made by the Britishers. Within the Congress party, Motilal Nehru and C.R. Das formed the Swaraj party. Then there was a worldwide economic depression. So due to this all problems, and at the same time, another Simon Commission was formed. And when it came to India, it was treated with the slogan "Simon Go Back" or "Go Back Simon." Then Gandhiji thought to pick up a issue which relate most of the people. So he took the salt law. There was a monopoly on the salt that anyone cannot make salt. Only the British authorized company can make salt. He broke the salt law. He with many volunteers he walked from Sabarmati Ashram to Dandi. And on the way he inspired many people, and this movement was supported by many women also. There was a large amount of participation of women in this compared to the non-cooperation movement. In reaction to this, British also took many decisions. Many women and children were beaten. Around 1 lakh people were arrested. Women's नहीं होता है. Woman का The plural is women. women. Child का Yes, plural sir. is children. Children.
were beaten and 1 lakh people were arrested. So Gandhiji has to call off the movement again, and it was a condition that there will be another round table conference in London, Conference. हाँ. which Mahatma Gandhi would join later on. So this much I remember. अच्छा. Okay, ठीक है. So we'll do a very quick recap. So what happened after that actually, in the Salt March and after, chalo, let me share my screen now so that, all of you can see. Okay, so the government response was that they very strictly tried to repress the civil disobedience movement, and more than 1 lakh of people were arrested. So before, when Gandhiji saw that this kind of repression was happening and also that people were turning violent, so he decided to call off the movement by entering into a pact with Viceroy Lord Irwin on 5th March 1931. And in that particular pact, it was written that Gandhiji has agreed to participate in the second roundtable conference. And of course, the government also agreed to release the political prisoners. So in December 1931, Gandhiji went to London to attend the second roundtable conference. But then nothing came out of it. And when he came back, he saw that Jawaharlal Nehru and Khan Abdul Ghaffar Khan, the Simanto Gandhi, they were also in jail. And the Congress has been declared illegal, and a lot of new laws have come up which prevented meetings, demonstrations, and boycotts. Okay, so Mahatma Gandhi, even though he was not very keen, he relaunched the civil disobedience movement in 1932, but by 1934 it had lost its steam. So that means उसका जो दम था उसमें वो खत्म हो चुका था. क्यों? इसलिए खत्म हो चुका था, अभी हम देखेंगे उसको, कि रिच कम्युनिटीज जो थे वो कौन थे? वो जो पीजेंट कम्युनिटीज थे, जैसे पटीदार थे गुजरात के और जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स करते थे एंड वो लोग हार्ड हिट हुए बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन का टाइम था. एवरीवन इज एबल टू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये डिप्रेशन का टाइम था, तो ट्रेड और बिजनेस अफेक्टेड हो रहा था, एंड देयरफॉर दे थॉट कि ये एक अच्छा मौका है जहां पे हम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं देंगे. तो क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक एम ये भी था कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे. ओके, तो एक उनका डिमांड ये भी था कि रेवेन्यू, जो लैंड का रेवेन्यू होता है, उसको भी कम किया जाए. इसीलिए ये लोग बड़े अच्छे से और एंथुजियास्टिकली इन लोगों ने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पहली बार. लेकिन अच्छा, जो लोग थोड़ा रिलक्टेंट थे क्योंकि सोच रहे थे कि भाई आगे क्या होगा पता नहीं, और हमें तो इसमें हम ज्वाइन करेंगे, तो बाद में पता चला कि हमारा बिजनेस भी सफर कर रहा है, तो वो लोग जो बॉयकॉट करने वाले थे उनको भी उन्होंने फोर्स किया कि आप आके पार्टिसिपेट करो हमारे साथ. लेकिन अब हुआ क्या कि जब 1931 में गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद उन्होंने देखा कि अरे हम लोग Call off means, सॉरी so call off means, कॉल ऑफ मींस बंद कर देना. द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब बंद करना, return back. हाँ. सो Okay, sir. या तो उसको स्टॉप कर देना. so basically what happened, in 1931 जब ये हुआ, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई फर्क तो पड़ा नहीं, रेवेन्यू वही है, टैक्स भी वही है, कोई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. So when the movement was restarted in 1932, when Gandhi came back from the second roundtable conference in London, they refused to participate in the movement.
उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ लोग थे वो कौन थे? पीजेंट्स। पीजेंट्स ने क्या बोला कि पीजेंट्स के साथ क्या हुआ? पीजेंट्स कौन थे? वो बेसिकली वो छोटे वाले कल्टीवेटर्स थे या फार्मर्स थे जो कि दूसरों के लैंड को लेके कल्टीवेट करते थे। और जो डिप्रेशन हुआ, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, उसमें उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि क्रॉप्स कोई खरीदता नहीं था एंड कैश इनकम नहीं आ रहा था। सो उनको रेंट देने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सो उससे पहले भी ये लोगों ने काफी जो रेडिकल मूवमेंट्स, सोशलिस्ट मूवमेंट्स, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उनका क्या था इंटरेस्ट? उनका इंटरेस्ट यही था कि हमें भाई जो आगे हमारे लैंडलॉर्ड है उनको रेंट ना देना पड़े। लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि अगर कांग्रेस नो रेंट वाला कैंपेन स्टार्ट करता है तो जो रिच पीपल हैं, जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, रिच बिजनेसमैन हैं, वो लोग कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे। सो ये जो पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस का जो रिलेशनशिप था वो हमेशा अनसर्टेन था। ये एक और रीजन है जिसके वजह से ये सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाया। थर्ड थे जो बिजनेस क्लास, जो कि मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे। उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज, दैट मींस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको उनका क्या इंटरेस्ट था? उनका ये इंटरेस्ट था कि हमारा बिजनेस को किस तरह से बचा जाए। फॉरेन इंपोर्ट का जो जो टैक्स होता है उनके ऊपर, जो उसको बंद किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसको एस्टैब्लिश किया 1927। उससे पहले इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस हुआ 1920 में। तो ये सब उन्होंने किया और उन्होंने बहुत ज्यादा कॉलोनियल कंट्रोल या कॉलोनियल okay, Sovik, fine. Sovik's mic is having some problem, so अभी सुन तो सकते हो ना, सुनो। So supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उनका इंटरेस्ट वही था। तो ये लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे फॉर जो क्या कहते हैं कि इंडिया का कुछ भला हो। स्वराज के लिए जितना ये लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। इन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट क्या था कि हम लोग अपना इंटरेस्ट को कैसे बचाए रखें। उनको लगा कि जब स्वराज आएगा तो उसमें क्या होगा, जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस है बिजनेस के ऊपर वो नहीं रहेगा और हम लोग अच्छे से अपना फ्री में ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो फेलियर हुआ, उनको लगा कि अगर ऐसा मिलिटेंट एक्टिविटीज स्प्रेड होता रहा तो हमारा बिजनेस जो है बहुत ज्यादा सफर कर जाएगा। और इसलिए अच्छा, सोशलिज्म भी बढ़ रहा था। सोशलिज्म का मतलब यह है कि जो कैपिटलिस्ट, जो बिजनेसमैन है उनको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, जो बाकी लोग होते हैं उनको सोशलिस्ट बोलते हैं। सोशलिस्ट का मतलब यह है कि जो चाहते हैं समस्तों के भीतर एकता आसु, सब इक्वल है। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या है कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो जो सोशलिज्म भी बढ़ रहा था तो उन लोगों को घबराहट हो रही थी कि हमारा तो पैसा चला जाएगा सारा अगर स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगा तो। सो देयरफॉर दे वर आल्सो नॉट वेरी इंटरेस्टेड। उसके बाद था जो वर्किंग क्लास। इन द नागपुर रीजन देयर वाज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन द मूवमेंट एंड उन्होंने मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए एंड जो लो वेजेस पुअर वर्किंग कंडीशंस थे उसके खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक किया। एंड रेलवेज एंड डॉक वर्कर्स, डॉक मतलब जो पोर्ट एरियाज में होते हैं उनको डॉक वर्कर्स बोलते हैं, उन्होंने भी स्ट्राइक किया। बट कांग्रेस इतना ज्यादा खुश नहीं था इन लोगों को इंक्लूड करने के लिए क्योंकि उनको लगा कि अगर ये लोग ज्यादा हमारे साथ मिलते हैं तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये लोग हमसे दूर हो जाएंगे। एंड जो एंटी इंपेरियल फोर्स है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास था, तो एंटी इंपेरियल फोर्स भी डिवीजन उनका भी हो जाएगा। अच्छा, विमेन का क्या पार्टिसिपेशन था हमने कल देखा था, बहुत yes sir, ज्यादा एक पार्टिसिपेटेड करेजियसली, वेरी करेजियसली दे पार्टिसिपेटेड। उन्होंने वो लोग सारे, बहुत सारे विमेन अरेस्टेड भी हुए, बट मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द अर्बन एरियाज
और इवन फ्रॉम रूरल एरियाज जो थे वो रिच हाउस होल्ड से थे। एंड कांग्रेस का कोई ऐसा पॉलिसी नहीं था कि वहां पे वुमेन को कोई मतलब अथॉरिटी का पोजीशन दिया जाए। सो देयरफॉर वुमेन का अच्छा था, बट सिग्निफिकेंटली कोई हम लोगों ने देखा नहीं है जहां पे किसी का नाम इतना ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। Yes, one thing had happened. We know that Sarojini Naidu had accompanied Mahatma Gandhi to go to London for the second roundtable conference. Okay, तो ये तो था जो पार्टिसिपेशन की बात। आज हम देखेंगे कि what were the shortcomings, why this civil disobedience movement failed. So सबसे बड़ा जो कारण था इसका, ये कारण था कि एक स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो किसी को समझ में नहीं आया। इट वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। लाइक दलित के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए ये जो रेवेन्यू से छुटकारा ही उनके लिए था वो। क्या स्वराज का मतलब उनके लिए रेवेन्यू से छुटकारा था। एग्जैक्टली मतलब हर ग्रुप अपना खुद का बेनिफिट देख रहा था, स्वराज क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा था। एंड दलित लोगों ने और मुस्लिम लोगों ने अपना स्वराज को डिफरेंट वे में पोर्ट्रे किया। कैसे पोर्ट्रे किया, कल मैंने बोला था, याद है किसी को? चलो अभी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में पूछूंगा, भूल गए तुम लोग। Who were the Dalits? The Dalits were the untouchables. And बहुत सालों तक कांग्रेस दलित लोगों को इग्नोर किया, क्योंकि मैंने कल भी बोला था आपको कि पहले पहले कांग्रेस एक कंजर्वेटिव पार्टी थी। हाई कास्ट हिंदूज वहां पे रूल करते थे या फिर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में थे। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि दलित लोगों को अपने पार्टी में शामिल करके वो जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो जाए या उनको ऑफेंड कर दें, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था इंडिया में उस टाइम। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वाज इम्पॉसिबल इफ अनटचेबिलिटी वाजंट एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी ने कहा कि और आगे 100 साल तक भी आप लोग आजादी नहीं पा सकते, स्वराज आपको नहीं मिलेगा जब तक अनटचेबिलिटी, छूत अछूत, जब तक वो इंडिया से निकाला नहीं जाएगा तब तक आप स्वराज हासिल नहीं कर सकते। और उन्होंने, गांधी जी ने दलित लोगों को एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हरिजन। हरिजन, वेरी गुड। हरिजन का मतलब क्या है? The children of God. चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरि के लोग। हाँ, हरि के लोग, तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वेरी गुड। सो यू नो गांधी जी ने ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स, क्योंकि मंदिर में भी जाने के लिए उनको अलाउड नहीं था। पब्लिक जो वेल है, कुआं है, वहां से पानी नहीं ले सकते थे। जो टैंक्स मतलब पोखरी जो सूथिला सेटू पानी नहीं पारिवेनी। जो रोड में जनरल पब्लिक चलता है वहां पे वो लोग उसको यूज नहीं कर सकते, उनके लिए वो अलग अपना रोड बनाएंगे। स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते अगर आप अनटचेबल हो, अगर दलित हो तो। एंड ये सत्याग्रह किया गांधी जी ने सो दैट लोगों को समझ में आए एंड वो भी इस मूवमेंट में शामिल हो। लेकिन जो दलित लीडर्स थे इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर, वो एक दूसरा पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे फॉर देयर कम्युनिटी। उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले सुन लो। So what happened with Dalits? They began organizing themselves and placing their demands. तो वो लोग भी इकट्ठा होके अपना डिमांड्स प्लेस करने लगे। Therefore, Dalit participation in the movement was limited, particularly in Maharashtra and Nagpur region, where their organization was quite strong. तो इस टाइम क्या हो रहा था एक्चुअली? इस टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, इनफैक्ट फॉरेन से डिग्री लेके आए हुए थे, ही वॉज वन ऑफ द दलित लीडर्स हु हैड
उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है फॉर द दलित मूवमेंट इन इंडिया. इनफैक्ट ही formed a particular party also, एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया, दलित एसोसिएशन. एंड उन्होंने ये डिमांड किया कि दलित्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स होने चाहिए. अलग इलेक्टोरेट्स का मतलब आप समझते हो क्या है? कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उस पर्टिकुलर इलेक्टोरेट में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ओनली दलित कैंडिडेट्स विल बी, they can only contest and Dalits only will vote. उनके लिए अलग इलेक्टोरेट बनाने के लिए बोला. एंड गांधी जी ने उसका बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने उसका अपोज किया. क्यों अपोज किया? उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह से दलित्स के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाओगे तो दो प्रॉब्लम्स होंगी. एक तो वो लोग कभी मेन स्ट्रीम के साथ मिल नहीं पाएंगे, वो हमेशा अलग ही रहेंगे ना. दूसरा, वो धीरे धीरे क्या होगा, एक सेसेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. सेसेशन का मतलब है कि अलग होना. CESSATION, सेसेशन, इसका मतलब है अलग होना. पार्टीशन. हाँ, पार्टीशन मतलब अलग हो जाना. माने खंड होइकिरी पड़ेबा अन्य जगह, माने अन्य मेन येरु छिंडी जीवा, दैट्स सेसेशन. सो वो भी अपना सेसेशन होके वो अलग हो जाते, एक और नया कंट्री बन जाता दलितों का. वो नहीं चाहते थे गांधी जी, ये नहीं चाहते थे. गांधी जी चाहते थे कि सब लोग मिलके रहें. गांधी जी कभी ये भी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम के लिए अलग कंट्री बने और वो लोग भी अलग हो जाएं. वो चाहते थे कि सब लोग यहाँ पे भाईचारा के साथ मिलके इस कंट्री में रहें. सो हाँ, मुस्लिम के पास भी आते हैं. तो इसमें क्या हुआ, जब गांधी जी बिल्कुल नहीं माने एंड अंबेडकर भी अपने जिद पे अड़े रहे और गांधी जी ने भी स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं, ये कभी मैं होने नहीं दूंगा. तो फाइनली एक मिडिल वे निकाला गया. वो मिडिल वे क्या था कि हर एक इलेक्टोरेट में, या जहां पे भी दलितों का संख्या ज्यादा है, या फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन पूरा जो डायस्पोरा है, दैट मीन्स पूरा पॉपुलेशन को देख के दलितों के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा, सो दैट वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें, है ना, अपना रिप्रेजेंटेशन उनको भी मिल सके. इसका रीजन क्या है कि ड्यूरिंग दैट टाइम एक्सेप्ट अंबेडकर और कोई भी दलित ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था. सो क्योंकि वो लोग मेन सोसाइटी में नहीं आ सकते थे. अब स्कूल ही जाने के लिए उनको अगर अलाउड नहीं है तो वो पढ़ेंगे कहां? जब पढ़ेंगे नहीं तो उनका रिच होने का या फिर मेन स्ट्रीम में आने का या फिर कोई भी सरकारी नौकरी में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो इसलिए फाइनली यही सोल्यूशन निकाला गया कि उनके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा, सो दैट दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट. लेकिन मॉडर्न इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन जो रिजर्वेशन था वो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सारे जनरेशन को चला गया. उसके वजह से क्या हुआ कि जो रिच दलित है या बहुत उनके फादर IAS ऑफिसर हैं, उनके बच्चे को सर बीच में सुनने नहीं दिए सर. नहीं, मैंने बोला कि जो ये इंडिपेंडेंट इंडिया में ये जनरेशन के बाद जनरेशन सबके लिए रिजर्वेशन आ गया, ठीक है ना. तो सेकेंड जनरेशन को अगर रिजर्वेशन मिलेगा, जो फर्स्ट जनरेशन का जो आदमी है अगर वो IAS ऑफिसर है तो उसके बच्चे को भी अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो वो भी IAS बन जाएगा. तो वो एक लेगेसी स्टार्ट हो गया. चलो वो उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन उस टाइम जो नीड ऑफ द आवर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड ये भी इंपॉर्टेंट था कि उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए. ठीक है, क्लियर. उसके बाद हम आते हैं मुस्लिम्स के ऊपर. अब क्या हुआ कि जब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे खत्म हुआ, उसके बाद मुस्लिम लोग जो हैं वो कांग्रेस से दूर होने लगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं था, ना तो कांग्रेस में उनको वेलकम किया जा रहा था. सो धीरे धीरे क्या हुआ कि
ईच कम्युनिटी, मतलब हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, अपना अपना रिलीजियस प्रोसेशन ऑर्गेनाइज करने लगे, और उस प्रोसेशन में वो अब थोड़ा मिलिटेंसी का फ्लेवर भी था, मतलब थोड़ा सा अपना ताकत दिखाने का भी प्रयास कर रहे थे उस प्रोसेशन में। और ये क्या, इसके वजह से क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस और राइट्स रेगुलरली होने लगे। ये सब चीजें प्रोवोक किया, और जितनी बार राइट्स हुए उतनी बार जो हिंदू मुस्लिम का जो डिस्टेंस था कम्युनिटीज का, वो ज्यादा से ज्यादा होता चला गया। तो यूनिटी बनाए रखने के लिए, अच्छा उस टाइम क्या हुआ कि एक मुस्लिम लीग उनका बन चुका था और हिंदू महासभा भी बन चुका था। तो जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कि फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जैसे महात्मा गांधी को हमारा फादर ऑफ द नेशन क्या कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ पाकिस्तान क्या कहा जाता है। ही वॉज विलिंग, अच्छा उनका भी वही डिमांड था, तो मोहम्मद अली जिन्ना का भी वही डिमांड था कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाए, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल भी मना कर दिया। जैसे उन्होंने दलित को मना किया था, उनको भी मना किया कि अलग इलेक्टोरेट नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम बातचीत से इसको सॉल्व करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ठीक है, अगर जैसे दलितों को रिजर्वेशन दिया गया, अगर सेंट्रल असेंबली में हमारा, अगर उस तरह से पार्लियामेंट में हमारे लिए, अगर हमारे कौम के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए अगर रिजर्वेशन रखा जाता है, तो वी आर रेडी टू गिव अप आवर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर ठीक है, अगर रिजर्वेशन होगा तो फिर हम लोग इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे, एक ही कंट्री में रहेंगे, और हम लोग का क्या होगा कि, एक मिनट, तो हम लोग अलग इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे अगर हमारा रिजर्वेशन मिल जाएगा तो, ठीक है। और वो लोग कहाँ रिजर्वेशन चाहते थे, जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे। ओके, तो अब उसमें क्या हुआ कि एक, सो यहां तक, अच्छा गांधी जी भी एग्री हो गए इस बात पे, लेकिन जब उनका जो फाइनल जब डिस्कशन हुआ, ये सारा जो इशू रिजॉल्व करना था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि जो एम.आर. जयकर थे ऑफ हिंदू महासभा, ही स्ट्रांगली अपोज्ड इट। उन्होंने बोला कि नथिंग डूइंग, देयर वोंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज, और कोई रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाएगा, ना तो उनको इलेक्टोरेट दिया जाएगा, ना तो उनको अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा। सो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो 1928 में हो रहा था, बिकॉज ऑफ हिंदू महासभा एम.आर. जयकर, दिस proposal was completely put down, and after that there was no other option but to create a new country. So मुस्लिम का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें एक हमेशा सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट रहा। इसलिए रहा कि उनको लगा हम लोग अगर रहते भी हैं यहाँ पे, फिर भी हमें ना तो रिजर्वेशन मिलेगा, ना तो हमारा कोई राइट्स को डिफेंड करने वाला कोई होगा, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी में हैं, हम तो मेजोरिटी में नहीं है। एंड वो कांग्रेस से भी एलियनेटेड फील करने लगे, एंड large sections of the Muslims could not respond to the call for a united struggle, and जो मुस्लिम लीडर्स थे एंड इंटेलेक्चुअल्स थे, they expressed concern about the status of Muslims as a minority within India. Minority रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उनको ये लगा कि हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा हिंदू डोमिनेशन में। सो उसके बाद फाइनली
सर आपण म्यूट हो जाइए। अरे 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 अरे, बहुत देर तक मैं म्यूट था क्या? नो सर, जस्ट। अच्छा, Just कहाँ 30 तक? seconds. अच्छा, कहाँ तक आप लोगों ने सुना है? सर मुस्लिम तक सुन लिया पूरा। पूरा सुन लिया, ओके, ठीक है। अच्छा, तो now what happened? The civil disobedience movement was called off without the fulfillment of the सर demand. योर पोस्ट वीडियो एंड ऑडियो। अच्छा, अभी भी पॉज है? नो अभी चल रहा है। Okay. So this civil disobedience movement was called off without the fulfillment of the demand of the rich peasant communities. And when the movement was relaunched, many rich peasant communities decided not to join the civil disobedience movement. तो रिच peasants ने ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया बिकॉज दे थॉट कि ये अपसेट करेगा किसको? peasants and landlords को। Industrial workers did not participate in the civil disobedience movement except in Nagpur. तो वर्कर लोग भी नहीं किए। अच्छा, militant activities were spreading and worries of prolonged business disruption, और ये सब चीजें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हो गया। बिजनेस क्लास ऑल्सो वाज वेरी अप्रेंसिव कि आगे क्या होने वाला है। दलित्स का भी हमने डिस्कस किया कि वो लोग कभी हाई कास्ट हिंदूज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किए एंड उनको पार्टिसिपेट करने भी नहीं दिया जा रहा था। बाद में ऑफ कोर्स हुआ। एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज का क्या प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बताया, और वो हमेशा हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में फाइटिंग या फिर जो राइट्स वगैरह वो चल रहे थे बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट एटीट्यूड ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। ओके, अब हम देखते हैं कि ये सब जो फेलियर हुआ, दीज आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ फेलियर, हमने अभी देखा। लेकिन फाइनली एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि इसके द्वारा, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू, we see that nationalism or the feeling of nationalism among the people, it grew very rapidly. लोगों को nationalism का मतलब समझ में आया, and this concept of nationalism brought about the sense of collective belonging. And this collective belonging हुआ कैसे? Slowly and steadily इसलिए हुआ कि जो यूनाइटेड स्ट्रगल, इतने लोग जो मिलकर ये स्ट्रगल कर रहे थे, इसके वजह से ये कलेक्टिव बिलोंगिंग हुआ। जबकि कुछ लोग तो पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इंडियंस ने इसके साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। Achha, what is the thing that binds us together as Indians today? Batao? So we live in the same boundary. Because we live in the same country. Yes, sir. We live in the same country. That is what binds us. क्योंकि अगर मैं तुमको पूछता हूं कि are you an Indian citizen? Yes, I'm an Indian citizen. अगर आप मुझे पूछते हो कि are you an Indian citizen? I say yes, I'm an Indian citizen. Let me give an example from my own experience. When I was in Delhi, so वहां पे अगर आप किसी ओडिया को देखते हो, किसी ओडिया से मिलते हो, तो you feel so good. Why? Because he belongs to your state, because he can speak the same language, because he has the same food habits, because he understands what you're talking about. Right? Similarly, if you meet an Indian, he may not be from Odisha, he may be from some other place in a foreign country, you feel so happy because you are meeting a fellow Indian citizen. So, that fellow feeling or that collective belonging is important. And that is something, that is the unity that binds us together. Whose time there was no country.
आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वहां पे कोई कंट्री नहीं था उस टाइम. इंडिया had not emerged as a nation, had not gained independence, but they all were united and they were struggling for independence together, and that helped in building the sense of collective belonging. And of course, culture also played a very important part, and it captured the spirit of nationalism. And even the media, like folklore कौन के कहबो? What is folklore? So traditional beliefs and tales. Traditional beliefs and our stories जो हम अपने आइमा कहानी, Generations. हाँ, it has been passed on from generation to generation. Those are folklores. Then there are fictions which are not real reality, or those are not history, but those are fictions with a deep insight into the Indian culture. Songs. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं. उस टाइम जब फ्रीडम फाइटर्स फाइट कर रहे थे, तो जो भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग एक गाना गा रहे थे. याद है किसी को? नहीं? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला. सुना नहीं ये गाना? Yes, sir. Heard. है ना? So that was the song. रंग दे बसंती एक मूवी भी आई थी शायद, है ना? आप लोगों ने देखा नहीं? देख लेना कहीं फुर्सत मिले तो. वेरी नाइस मूवी. नाउ रंग दे बसंती चोला, ये गाना एंटायर नॉर्दर्न इंडिया को, स्पेशली पंजाब एंड दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश के लोगों को यूनाइट किया था अगेंस्ट द स्ट्रगल, अगेंस्ट द ब्रिटिश इन देयर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. उनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ये मेजर गाना था. तो ये जो मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना ऐसा नहीं कि ये बहुत एक नेशनलिस्टिक सॉन्ग है, लेकिन इसका फ्लेवर क्या है कि मुझे जो भारत की, हिंदुस्तान की जो रंग है, उस रंग में मुझे रंग दे, मेरे चोले को रंग दे. ओके, सो it was just a folk song but became very popular during that time. And आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से songs were also written, they were developed, they were given tune, and बाद में कितने popular हुए उसको भी हम देखेंगे. Popular prints and symbols, they also played a very big and major role in the making of nationalism. And a sense of unity and nationalism was inspired by history and fiction, folklore, ये तो हमने देखा अभी. उसके बाद क्या हुआ कि अवनींद्रनाथ टैगोर, he painted an image of Bharat Mata, and Bankim Chandra Chattopadhyay wrote the song Vande Mataram. And these two things also united many people and communities. During the Swadeshi movement, a tricolor, red, green, and yellow flag was designed. It had 8 lotuses representing 8 provinces of India. उस टाइम 8 provinces थे, तो उसको represent करने के लिए ये बनाया गया था. So अवनींद्रनाथ टैगोर, कौन है अवनींद्रनाथ टैगोर? अरे, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? Sir, who designed the national anthem of our डिजाइन नहीं, वो wrote national. wrote, sorry. हाँ, okay. Wrote the national anthem. Very good. Only national anthem उन्होंने लिखा है, वो ठीक है, लेकिन he was a Sir, he wrote many great poems. Sir, in our Odisha, he made a school. हाँ, So कहाँ पे? name I don't remember. अच्छा, वेरी गुड. तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई का बेटा, दैट मीन तांको पुत्रा, हिज नेव्यू वाज अवनींद्रनाथ टैगोर.
And Abanindranath Tagore was an artist because his father was also a great artist. And he painted Bharat Mata. And Bankim Chandra Chattopadhyay, he wrote Vande Mataram. उसके बाद हमने ट्राई कलर जो गांधी जी ने भी डिजाइन किया था उसको हम देखेंगे कि उनका जो चरखा वाला ट्राई कलर कैसा था. ओके, सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज ऑफ भरत माता. ये उन्होंने तो पेंट किया था, कौन? जो अवनींद्रनाथ टैगोर. लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय he created this image and Abanindranath Tagore painted her image. Bharat Mata looked like a sannyasini. She is calm, divine and spiritual. Devotion towards her became a proof of nationalism. अभी देखो यहाँ पे दो चीजों को लिंक करना है. नंबर वन, अवनींद्रनाथ टैगोर, पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसका उनका इमेज क्रिएट किया. ही वाज नॉट ए पेंटर ना, तो उन्होंने इमेज को क्रिएट किया अपने दिमाग में. उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर को बताया तो उन्होंने उसका इमेज को पेंट किया. एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा वंदे मातरम. इसका मतलब मातरम नेशनल सॉन्ग. हाँ वो तो है नेशनल सॉन्ग, लेकिन मातरम का मतलब क्या है? माता. माता मीन्स मदर. वंदे मदर, मदरलैंड. सो डू यू सी द इमेजरी ऑफ भारत माता along with the song Vande Mataram. ठीक है? Yes, sir. Okay. So this Vande Mataram was a prayer to Bharat Mata written by Bankim Chandra Chattopadhyay. And Vande Mataram became the war cry of the Indians. It was later included in his novel Anand Math. Bankim Chandra Chattopadhyay का जो नॉवेल है आनंद मठ में भी उन्होंने इसको इंक्लूड किया है. सो व्हाट इज, हु कैन सिंग वंदे मातरम? हु इज अ गुड सिंगर हियर? अरे बोलो, कौन? जैस्मिन? No, sir, I don't sing. या अंकिता? Santanu, you are an artist, na? You can sing, I think. Sir, I am artist in paper, not in song. Not in song. अच्छा, कौन गाना गाएगा? बोलो. Sir, if anybody will sing, then earphones will be blasted. अच्छा, Pratyush, what about you? Hello, Pratyush, would you like to sing Vande Mataram? गाइबो? नहीं. अंकिता, अरे तुम लोग इंडियन हो लेकिन गाना नहीं चाहते हो, क्या बात है? चलो ठीक है, रिकॉर्ड करके भेजना व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके, वंदे मातरम देखते हैं. So then let's talk about the national flag. During the Swadeshi movement, a tricolor flag, red, green and yellow, was developed. It had 8 lotuses representing the 8 provinces of British India. उस टाइम का. It also had the crescent moon, which represented Hindus and Muslims. The lotus represent कर रहा था Hindus को and crescent moon represent कर रहा था Muslims को. And in 1921, Gandhiji designed the Swaraj flag. It was also a tricolor flag, red, green and white. It had a spinning wheel, charkha, which represents the Gandhian idea of self-help. गांधी बोलते थे ना कि काम करो, काम न कले खाइबा बंद. तेणु केही अलस रहबेनि, समस्त काम करिवे आ निजकु निजे तमे निजर खाइबा खर्च तमे निजे उठेबो. And this flag became a symbol of the nation. It created the feeling of oneness. The people carried flag in protest marches and rallies. ये तो अपना ब्रिटिश फ्लैग था. ये जो फ्लैग था, इसमें क्रेसेंट मून वाला फ्लैग था, जो 8 लोटसेस वाला फ्लैग था. एंड ये हमारा जो गांधी जी ने इसको, पहले तो ये डिजाइन था, बाद में फाइनली ये डिजाइन अडॉप्ट किया गया और इसी से हमारा फाइनली नेशनल फ्लैग, द ट्राइकलर, हैज बीन टेकन. Okay. So we see that, now the rediscovery of, just 1 minute.
Okay. So now we see the rediscoveries of India's past. The British considered Indians backward and primitive. They said that the Indians were not capable of ruling themselves. तो Britishers ने हमें हमेशा नीचा समझा. And in the 19th century, some educated Indians started the efforts to rediscover India's great achievements. They rediscovered the achievements made by the Indians in art, architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, crafts, and trade. So in the 19th century, some people, they rediscovered these achievements made by Indians. Knowledge about the great achievements of Indians created national pride, self-confidence, and patriotism among the Indians. The sense of national pride and patriotism was developed by this rediscovering the achievements made by the Indians in different fields. Okay. Nationalist people who were nationalists, they toured the villages to collect the folk songs and legends. वो गांव-गांव जाके निकाल के लेके आ रहे थे लोगों के पास, अपने legends बताओ, अपने folk songs बताओ. Rabindranath Tagore collected a number of folk songs and legends. In Madras, Natesha Sastry published a 4-volume collection of Tamil folk tales, which are known as the folklore of southern India. The folk songs and legends gave a true picture of Indian culture. तो Indian culture को दोबारा से present किया गया. They showed their all thoughts and characteristics of Indians. They created national pride among the people. तो ये था जो nationalism और collective belonging के बात हम जो कर रहे थे, तो ये था. ठीक है. अभी हम देखेंगे एक वीडियो देखेंगे. ओके. वही कलेक्टिव बिलोंगिंग के ऊपर एक वीडियो देखेंगे. आर यू एबल टू हियर मी? Yes. Yes, sir. अगर साउंड नहीं आएगा तो बताना मुझे. Okay, sir. नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 6. इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में. इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप होने के 2 मेन रीजंस हैं. पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल और दूसरा है कल्चरल प्रोसेस. तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्ट्रगल के बारे में. दोस्तों, 19th और 20th सेंचुरी में जितने भी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज की गई, उसमें सारे के सारे सोशल ग्रुप्स ने मिलकर एक साथ होकर पार्ट लिया. और इस यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया पूरे इंडिया में बहुत दूर तक और बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ. दूसरा रीजन है कल्चरल प्रोसेस. इंडिया में 20th सेंचुरीज में काफी एलिगोरीज, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स को इंट्रोड्यूस किया गया और ये सारी चीजें कल्चर से काफी ज्यादा रिलेटेड थी. फॉर एन एग्जाम्पल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की इमेज को फॉर्म किया, जो कि एक एलिगोरी है और वो एक हिडन मैसेज रिवील करती है कि इंडिया हमारा मदर लैंड है और इंडिया की प्रोटेक्शन और फ्रीडम हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है. और इन्होंने एक स्लोगन भी फॉर्म किया था जो था वंदे मातरम, जो कि हर फ्रीडम स्ट्रगल में यूज किया जाने लगा. और आगे चल के इस पे एक पोएम भी लिखी गई जिसको हमने सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग है. और दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार भारत माता को पेंट किया था, जिसमें कि भारत माता को काम, कंपोस्ट, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया है. और दोस्तों, नेशनलिज्म का आइडिया इंडियन फोकलोर को वापस रिवाइव करने के आइडिया से भी स्प्रेड होने लगा. 19th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स को गाकर रिकॉर्ड करना और उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया. उनके अनुसार ये जो टेल्स हैं, ये हमारे कल्चर को एक ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करती थी, जो कि डैमेज कर दी गई थी आउटसाइड फोर्सेस से, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा. जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, वैसे वैसे लीडर्स को भी इन सिंबल्स और आइकॉन्स की इंपॉर्टेंस रियलाइज होने लगी इंडिपेंडेंस दिलवाने में. बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग को डिजाइन किया गया था, जो कि रेड, ग्रीन और येलो कलर का था.
1921 तक गांधी जी ने भी अपना एक ट्राई कलर फ्लैग, स्वदेशी फ्लैग डिजाइन कर लिया था, जिसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील थी जो कि सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। ब्रिटिशर्स इंडियंस को बैकवर्ड और प्रिमिटिव की तरह देखते थे। वो सोचते थे कि इंडियंस अपने आप को ठीक से गवर्न नहीं कर सकते थे। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने भी अपने पास्ट अचीवमेंट्स को, एंशियंट टाइम की अचीवमेंट्स को याद करना शुरू कर दिया। वो तरह तरह की चीजों के बारे में लिखने लगे, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर। इंडियंस के अनुसार इंडिया एक बहुत ही ग्लोरियस एम्पायर हुआ करता था, जो कि बर्बाद कर दिया गया कॉलोनाइजेशन के कारण, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और दोस्तों, इन्हीं सब रीजंस के कारण लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग काफी ज्यादा डेवलप हो गई और 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, और जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, और जिसके कारण 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो आइए इस वीडियो के द्वारा एक ट्रिब्यूट देते हैं उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए बिना अपने बारे में सोचते हुए, ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता। देखिला कौन, what would you like to say before we go into the conclusion? Okay, let's conclude it, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। So, a growing anger against the colonial government was bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances into united, organized movements for independence. ये तो पूरा क्लियर है, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। But as diverse groups, many different various other groups and classes participated in these movements with varied aspirations and expectations, their grievances were wide. एक मिनट नीचे रह गया। Were wide-ranging, and freedom from colonial rule also meant different things to different people. Okay. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another. This is why the unity within the movement often broke down. तो कांग्रेस को हमेशा बैलेंस लेके चलना पड़ता था। इस ग्रुप को भी संभालना है, दूसरे ग्रुप को भी संभालना है, तो इसके वजह से ये मूवमेंट कहीं ना कहीं वो सफर किया। And the high points of the Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between the groups. तो कभी तो वो हाई पॉइंट में चले जाते थे और बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन साथ में जो डिसयूनिटी था, इनर कॉन्फ्लिक्ट था ग्रुप्स में, इसके वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. So there was one nation but many different voices. That's what was emerging. So ये हमारा जो है फाइनल slide है. So anyone who would like to say something, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया, बताओ। ये हमारा इंडिया। What was the Quit India movement? Okay, Quit India movement happened in 1942 and I think, मुझे पता नहीं ये आपके कोर्स में है या नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैं आपको जरूर थोड़ा सा बताऊंगा। डेफिनेटली because Yes sir, it is there in last one box is there. Very good. Because without Quit India movement, our national struggle or our struggle for independence of India, India national movement जिसको हम बोलते हैं, that will be अधूरा, that will not be complete without Quit India movement, क्योंकि Quit India movement के वजह से हमें आजादी मिली। वो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल मूवमेंट था
non-cooperation movement, civil disobedience movement, and finally culminated in Quit India movement. ये बीच बीच में साइमन गो बैक, रॉलेट एक्ट, ये तो सब चलता रहता था, लेकिन ये तीनों जो है मेजर लैंडमार्क्स है, माइलस्टोन्स है इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था? 1857 सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, वहां से स्टार्ट हुआ था. बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये समझ में आ जाए किस तरह से हमारा स्टेज बाय स्टेज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सो मेनी अदर फ्रीडम फाइटर्स जो लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बाकी जो थोड़ा सा मिलिटेंट वाले थे, उन लोगों में से शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु और ये सब बाकी लोग थे. तो ये ऐसा नहीं कि ओनली इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, दूसरों का नहीं है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन लोगों ने मेजरली कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स द freedom struggle, and finally India achieved independence in 1947, because nobody in their wildest dreams ever thought कि कोई भी नॉन वायलेंट मीन्स से फ्रीडम अचीव किया जा सकता है. और आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला था आपको पता है? आइंस्टाइन ने बोला था कि मे बी 100 years later or a century later, no one would ever believe that a living person with flesh and blood like Mahatma Gandhi had ever walked the face of this earth. मतलब महात्मा गांधी जैसा कोई आदमी 100 साल के बाद कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ऐसे नॉन वायलेंट मेथड से कोई जीत सकता है, अपना इंडिपेंडेंस ले सकता है. ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा कोई आदमी था और वो इस फेस ऑफ द अर्थ, मतलब he had walked on the face of this earth. कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बोला था. अल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी. सो द पॉइंट इज कि हमको ये समझना पड़ेगा कि द स्पिरिट बिहाइंड इंडियन नेशनल स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वाज नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. जो भी हमारे जो लैंडमार्क्स थे, टाइम जरूर लगा था, ऐसा नहीं कि एक दिन में मिल गया. शायद वायलेंट मीन्स में जाते, कोई बता नहीं सकता. मैं तो कोई वैसा प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता हूं कि हमें इंडिपेंडेंस मिलता या नहीं मिलता, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसको देखता हूं तो ब्रिटिशर्स वेर मच मच मोर पावरफुल इन टेक्नोलॉजी, इन वॉरफेयर, in arms and ammunitions, in everything. So तभी तो उन्होंने कब्जा कर लिया था पूरे इंडिया में. Anyway, that's a different story altogether, but definitely we are going to touch upon 1942 Quit India movement. और कोई प्रश्न है? Any other question? No, sir. Okay. ठीक है. So what we will do, I will try to provide you with all the notes and supplements. जो भी मैं भेजता हूँ वो भेजता रहूंगा. आज ट्राई करूंगा भेजने के लिए. एंड क्योंकि माइंड मैप है जिसको मैं आपको कराना चाहता हूँ, उसको जरूर देख लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि माइंड मैप आपको पूरा दिमाग में वो डाल देगा. और वो जो वीडियो है उसको भी देख लेना ताकि सीक्वेंशियली आपको सब कुछ याद आ जाए दोबारा से. एंड माइंड मैप क्या करेगा? जो हमारा जो 2 टेक्निक है हमने बोला था, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, इसको करना है. ठीक है ना? एंड मे बी विल हैव एन टेस्ट और समथिंग. आई विल लेट यू नो. इन द मीन टाइम लेट मी वेलकम Pragya ma'am, and she's already there and she's going to take English.